is Van Charles law, and third one is Van law. After this, today we are going to learn about determination of molar mass of solute by using osmotic pressure. अब ये solute का molar mass determine करना है osmotic pressure को बेटा use करके. So determination of molar mass of solute by using osmotic pressure. Molar mass of solute, it is denoted by M2. solute के molar mass को बेटा determine किया जाता है M2 से. चलिए, so we know that according to Van Hoff law, according to Van Hoff law, pi is equal to CRT. Van Hoff law का बोलना है बेटा pi is equal to CRT. Pi is an osmotic pressure, C it is a concentration of solution, R it is a universal gas constant, T it is a temperature. Okay, so pi is equal to CRT. But we know that C is equal to N by V. Last lecture में पढ़े बेटा आपने C is equal to N by V. C it is the concentration of solution, N it is a number of moles of solute, V it is a volume of solution. तो बेटा मैं C की जगह क्या लिखूंगा? N by V लिखूंगा. Therefore this expression becomes pi is equal to N RT divided by V. Pi is equal to nRT divided by V. Pi it is an osmotic pressure, N it is a number of moles of solute, R it is an universal gas constant, T it is an temperature, V it is an volume of solution. Now we know N, it is the number of moles of solute. Number of moles of solute is equal to W2 by N2. तो number of moles of solute equal होते हैं N2 by W2 by M2. W2 it is the weight of solute. M2 it is molar mass of solute. तो बड़ा मैं यहाँ N की जगह लिख सकता W2 by M2. So this expression becomes pi is equal to W2 divided by M2 into R into T divided by V. Okay? अब बेटा ये M2 आ जाएगा नीचे, M2 आ जाएगा बेटा नीचे. Therefore pi is equal to W2 into R into T divided by M2 into V. Now in this expression, pi it is an osmotic pressure, W2 it is weight of solute, R it is an universal gas constant, T it is a temperature, M2 it is molar mass of solute, V it is volume of solution. अब बेटे हमारा एम है solute का molar mass determine करना. Therefore finally molar mass of solute is determined by using an expression. थोड़ा ये M2 आ जाएगा इधर, ये पाई जाएगा बेटा इधर. तो फाइनली एक्सप्रेशन बनेगी M2 is equal to W2 into R into T divided by pi into V. So it is the expression to calculate molar mass of solute by using osmotic pressure. Now in this expression, M2 it is a molar mass of solute, W2 it is a weight of solute, R it is a universal gas constant, T it is a temperature, pi it is a osmotic pressure, V it is a volume of solution. Okay? Now value of R. अब बेटे R की वैल्यू होती है 0.0821
या बेटा 8.314। ये कौन सी वैल्यू कब यूज करना है, तो बेटा वो मैं न्यूमेरिकल के टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। सो m2 इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। अब बेटा हम स्टडी करेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। So let's continue another topic, that is the abnormal qualitative properties. Abnormal, which is not a normal, जो बेटा नॉर्मल नहीं होता है उसे कहा जाता है बेटा abnormal. Now we know that qualitative properties of the solution depend upon the number of solute particles. If number of solute particles are increases, qualitative property also increases. If number of solute particles are decreases, then qualitative property also decreases. अगर बेटे number of solute particles increase होते हैं, थोड़ा qualitative property भी increase होती है। number of solute particles बेटा decrease होते हैं, तो बेटा qualitative property भी decrease होती है। So such change in qualitative property of an dilute solution due to dissociation or association. Dissociation means breaking. Due to dissociation, number of solute particles are increases. जैसे बेटा सपोज करो ये बेटा एक पार्टिकल है, अब बेटा इसका डिसोसिएशन हुआ, इसकी बेटा ब्रेकिंग हुई, तो एक पार्टिकल का बन गया बेटा दो पार्टिकल, तो बेटा solute पार्टिकल डबल हो गए, तो बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डबल होगी। एंड ड्यू टू एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, कंबाइन होना। So due to association, number of solute particles are decreases, and when number of solute particles are decreases, qualitative property also decreases. So such change in qualitative property of an dilute solution due to dissociation or association is called as abnormal qualitative properties. So the change in qualitative properties, the change in qualitative properties, the change in qualitative properties of an dilute solution, of an dilute solution due to dissociation. So the change in qualitative properties of a dilute solution due to dissociation, due to dissociation or association, due to dissociation or association, right? So the change in qualitative properties of a dilute solution due to dissociation or association of solute particle present in solution, solute particle present in solution is called as abnormal qualitative properties. तो बेटा जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है किसकी वजह से बेटा, या तो डिसोसिएशन की वजह से या बेटा एसोसिएशन की वजह से, तो बेटा उसे कहा जाता है abnormal qualitative properties. So such change in qualitative properties of a dilute solution due to dissociation or association of solute particles present in solution is called as abnormal qualitative properties. अब बेटा solute particle में dissociation भी हो सकता या बेटा solute particle में association भी हो सकता। Dissociation means breaking. Dissociation का मतलब है बेटा breaking. And generally ionic compounds undergoes dissociation. जो बेटा ionic compound है उनमें होता है बेटा dissociation. And those compounds having the ability to form intermolecular hydrogen bonding. बेटे ऐसे compound
जिनमें बेटे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की एबिलिटी होती है, दैट कंपाउंड अंडरगोज एसोसिएशन। उन कंपाउंड में बेटा क्या होता, एसोसिएशन होता है। हम दोनों पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे बेटा हम एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ड्यू टू डिसोसिएशन। एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ड्यू टू डिसोसिएशन। तो बेटा एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसकी वजह से, डिसोसिएशन की वजह से। नाउ डिसोसिएशन मींस ब्रेकिंग। नाउ व्हेन सॉलिड पार्टिकल अंडरगोज डिसोसिएशन, जब बेटे सॉलिड पार्टिकल में डिसोसिएशन होता है, देन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस। थोड़े नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होते हैं। एज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस। देखिए फॉर एग्जांपल NaCl undergoes dissociation। अब ये NaCl एक पार्टिकल है। Now when it undergoes dissociation, there is form Na positive plus Cl negative। जब बेटा इसका डिसोसिएशन होगा तो ये बेटा फॉर्म करेगा Na positive Cl negative। अब यहाँ पे एक पार्टिकल के दो बन गए, एक पार्टिकल के बेटा दो बन गए, तो बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डबल। जैसे सपोज करो बेटा Kf की वैल्यू बेटा 1.86, तो बेटा इस रिएक्शन के लिए Kf की वैल्यू होगी 2 into 1.86, तो डबल हो जाएगी। क्यों डबल होगी, क्योंकि बेटे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होता है बेटा, डबल हो रहे, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डबल हो रहे, इसलिए बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी डबल। सेकेंड एग्जांपल देखिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ व्हेन मैग्नीशियम क्लोराइड अंडरगोज डिसोसिएशन, इट फॉर्म Mg डाइपॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। थोड़े जब बेटे मैग्नीशियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा तो वो फॉर्म करेगा Mg डाइपॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड एक पार्टिकल है, मगर बेटा ये एक पार्टिकल के बने तीन, एक बटा बना मैग्नीशियम और दो बने क्लोरीन, तो बेटा यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ट्रिपल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रिपल। तो बेटा यहाँ पे Kf की वैल्यू होगी 3 into 1.86। क्यों ट्रिपल हो गई, क्योंकि बेटे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। अब जरा ये एग्जांपल देखिए AlCl3 अल्यूमिनियम क्लोराइड। व्हेन दिस अल्यूमिनियम क्लोराइड अंडरगोज डिसोसिएशन, जब बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा, देन फॉर्म Al ट्राइपॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। Al ट्राइपॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। नाउ हियर वन पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू 4 पार्टिकल। यहां बेटे एक पार्टिकल का कन्वर्शन हो गया, कितने पार्टिकल में, 4 पार्टिकल में, राइट। सो हियर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। Therefore, qualitative properties also increases by 4/9. So, for this reaction, the value of Kf is equal to 4 into 1.86. तो बेटा 4 into 1.86. तो क्यों 4 टाइम इंक्रीज होगी, क्योंकि बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बेटा 4 टाइम इंक्रीज हो रहे, इसलिए बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी बेटा 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। So, due to dissociation, number of solid particle becomes double, triple, increases by 4 times. Therefore, qualitative property also increases by 2 times, 3 times or 4 times. अब दूसरे पे आइए, due to association. Due to association. Now, what happened due to association? Due to association, number of solid particles are decreases. एसोसिएशन की वजह से बेटा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज होती है, एंड एज द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर डिक्रीजेस, देन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो डिक्रीजेस। नाउ ऑल द कंपाउंड हैज एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा हर वो कंपाउंड जिसमें बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की एबिलिटी है, कौन कौन से, अल्कोहल है, फिनॉल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस है, ईस्टर है, ईथर है। ऑल दिस कंपाउंड हैज एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
number of solute particles are decreases. As number of solute particles are decreases, qualitative property also decreases. For example, see here acetic acid. एसिटिक एसिड. अब बेटा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH. CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH. ठीक है. चलिए अब बेटा एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लो और बेटा उन दोनों मॉलिक्यूल को बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट करो. जब बेटे दो मॉलिक्यूल को कनेक्ट करेंगे हम तो बेटा वो फॉर्म करता है डायमर. और बेटा दो मॉलिक्यूल का बन जाता है बेटा एक मॉलिक्यूल. अभी बताता हूं मैं. ठीक है. चलिए देखिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड. अब बेटा एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल. सो एसिटिक एसिड इट्स फार्मूला इज CH3 डबल बॉन्ड O OH. अब बेटा ये एक CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बेटा OH. इट इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड. ये बेटा एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल. अब बेटा वैसे ही दूसरा इधर लीजिए. ये बेटा CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये बेटा डबल बॉन्ड O, ये बेटा सिंगल बॉन्ड OH. ठीक है. ये सिंगल बॉन्ड OH. सो इट इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड. इट इज द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड. नाउ ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन occupies partial positive charge, हाइड्रोजन ऑक्सीजन occupies partial negative charge. इधर भी बेटा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इधर बेटे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इधर बेटा पार्शियल नेगेटिव, ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव. सो व्हेन दिस टू मॉलिक्यूल्स आर कम्स क्लोजर, जब बेटा ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो बेटे इसका नेगेटिव वाली चार्ज ऑक्सीजन कंबाइन होगा इस मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव वाली चार्ज हाइड्रोजन के साथ. वैसा ही बेटे इसका पार्शियली पॉजिटिव वाली चार्ज हाइड्रोजन कंबाइन होगा इसके पार्शियली नेगेटिव वाली चार्ज ऑक्सीजन के साथ. एंड सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस बॉन्डिंग को बेटा क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग molecules are associated together. इस बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं. तो बेटा ये दो मॉलिक्यूल थे मगर दो का कंबाइन होके बना एक. तो बेटा इसको बोलते बेटा डायमर. डायमर डाई मीन्स टू, मर मीन्स मॉलिक्यूल और बेसिक यूनिट. सो ये टू मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म दी वन पार्टिकल. तो बेटा यहाँ पे दो पार्टिकल कंबाइन होके बना बेटा एक पार्टिकल, मतलब एसोसिएशन हुआ. तो बेटा एसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज होगी. एंड ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल qualitative properties are also decreases. So here due to association number of solid particles are increases. Here due to dissociation number of solid particles are increases and qualitative property also increases. Here due to association number of solid particles are decreases and qualitative property also decreases. So such a change in qualitative properties of a dilute solution due to dissociation or association is called as abnormal qualitative properties. Okay, so today we will stop here. In next lecture we will continue. Okay.